अच्छा फिर हम आते हैं। Dear parents, honorable principal sir, respected teachers, non-teaching staff members, and all my dear roommates, Assalamu alaikum. I want to thank our honorable principal sir for organizing such programs which provide opportunities to the students to present their abilities and talents in front of you all. Now, I would like to request our honorable principal sir to welcome the guests with the cultural khata. Please give them a grand hand of applause. Please welcome them. Please give them a grand hand of applause. To take permission from our district planner to permit us to start the program. Mr. Rahman sir, please permit us the permission to start the program. I want to assure you all that today's day is going to be very wonderful for all of us. And we are here going to create a lot of memories. It is usually said that days are not lost when memories are created. So dear, your days are going to be wasted as today we are here to create a lot of beautiful memories. Now, I would like to request my co-host to please come on the stage to have a short discussion on the day between teachers and parents. Please welcome him with a grand hand of applause. वाले से मुखातिब हुआ अभी वाले आप सभी ने 2 पहियों वाली गाड़ी तो देखी होगी। क्या इस गाड़ी में कई भैया काम कर रहा होता तो क्या वो चलता? यकीनन बिल्कुल नहीं। वही गाड़ी तभी चलती है जब इसके दोनों पहियों के
दरमियान आपस में तमुन हो और एक दूसरे के साथ काम करे। अजीज वालिदैन तो इस पढ़े, अगर इनमें से वालिदैन आराम से बैठ जाए, ये सोचकर कि बच्चों का दाखिला प्राइवेट स्कूल में किया है तो इस स्कूल की हालत बिल्कुल उस दो पहियों वाली गाड़ी की तरह हो जाएगी जो एक पहियों के सहारे नहीं चल सकता। अगर हमें स्कूल को आगे ले जाना है तो वालिदैन और असातिज़ा को हमारे साथ काम करना होगा और स्कूल को चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ एक पर नहीं छोड़नी होगी। इसके बाद मैं आज यहाँ पर आए मेहमानों के लिए मेहमानों की खिदमत में शेर अर्ज करना चाहता हूँ। आपके चर्चे हालात आपका हो, दिल की एक चाहत बस बात आपका हो, कुछ मेरे सुनिए कुछ आपकी कहिए, शेर शायरी के गुनगुनाती रहिए। किस्मत है हमारी जो आपकी संगत है, ये किस्मत हमारी जो आपकी संगत है। आज इस प्रोग्राम में आपका जोरदार स्वागत है, आज के प्रोग्राम में आपका जोरदार स्वागत है। Without wasting much time, I would like to invite Thomas Aida Bano to make standard. Please come on the stage to present our speech. Please give him a big round of applause. The most gracious and merciful, I heartily welcome you all on behalf of South Public Secondary School, Bangu. For the prestigious occasion of our school annual celebration, it's very difficult to believe that what was once dream is being fulfilled now. The idea of putting the foundation of educational institutions is so inspiring. What was once planned as a sapling is now grown as a large tree. Here I can see a great extraordinary students and their parents who have made it life. They have come to us from each and every corner of the town. Every year I find it to be my pleasure to address you people who are the young minds of today and the responsible citizens of tomorrow. I and all of our dedicated team appreciate the efforts put by the parents along with their work. So here, I feel privileged to extend my warm welcome to all the dear parents who are constantly extending their support and love to people as well as faculty members of the school. Taking this morning further, and to beginning with their annual function, I, on behalf of everyone present here, heartily welcome to all the teachers, especially the teachers and the guests of honor. So on this annual day celebration, let us all pledge to give our children not just love, but let our support from the full way of learning trouble. Let them know that we are all for them and for them, and they have no reason to be depressed on or protecting their problems alone. I return to the stage to the bunch of stars, objecting to start from their life. It's not what we do for your children. It's not just what we do for. It's what we ask them to do for themselves. They will make them successful human beings. I leave you by the words, children are like shining stars. Never try to miss them all this. Thank you for a wonderful day. For the heart-touching speech, the speech was really spiritual. Now, let's move forward and be ready to listen to Aman Kabad from the entry point of Bali. Please give him a big round of applause. मैं बोलो देखिए
जश्न मनाएंगे जब इमाम आएंगे। झूठ बोले कौन रे मसला समझते हैं, बात बात कर देगा मसला कहते हैं। लोगों का सामान हम घरों में रखते हैं, किस तरह छुपाएंगे जब इमाम आएंगे। जश्न हम मनाएंगे जब इमाम आएंगे। The tone of Quran for birth is just now passing to my ears. Thank you very much, Pita. आते पहले हरी तिहाई बात, अरे आते पहले हरी तिहाई बात, आते लगे मिलन आते उदा के बाद, आते मिलन है आते उदा के बाद। दुनिया में काबिल, दुनिया में लोग काबिल काबिल, मैं सबको मालूम हूँ लोगों के बाद। सबको मालूम है, इस बात से तेरे को कोई मत नहीं आता है, बना नहीं आता है। सदिले सादे और राजा का शुक्रिया मुझे दूसरा मसला चाहिए सोती कोई चाहिए ऐसा इस्लाम का नलो हज़रत इमाम इस्लाम अलैहिस्सलाम अन्ना रमज़ान मदीना से आखिर शरीफ सोती और शरीफ से नाली सागिर कब्र मुताहर जन्नत का हज़रत इमाम हुसैन अलैहि शबल्ला मदीना के इज़ार मोहरम शरीफ सोती और शरीफ सलावन सागिर कब्र मुताहर करबलायो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि सलाम करम जमीउल अबला Following the biography of our three imams, I would like to invite the student of class 8 to present the Shakir Namaz. Please give them a big round of applause. Rakat suba pianu shaksu, rakat diva pianu shaksu, divatani rakat suba rakat diva pianu shaksu, divatani rakat diva rakat diva pianu shaksu, divatani rakat suba rakat diva pianu shaksu, divatani rakat diva pianu shaksu, divatani rakat kami rakat sambar. पहला जगाना लेके अपना शब्द, दूसरा सलाम कैसे अपना शब्द, तीसरा जिंदगी का शब्द, चौथा इमाम जमात का इमाम नमानी गड अपना शब्द, पांचवा सलाम कैसे अपना शब्द, छठा मामूल शख्स Niestety este jawna szaksu, niezwłaszcza suma zarzuciwać, że syna zrobiła ta mambo, etiana kadizla, syniesteka tu se malaką.
Necesite gamna saksungizma salivas. Vigas na vizopia tamambot efia la carne stanque malacum. Necesite gamna saksungizma salivas. Vigas na vizopia tamambot efia la carne stanque malacum. Gahalatan inain nibasa abas nisakun bigas na jofya kutamanggot kutamanggot se designis malakun langsi nibasa sakun nibasa abas japsika mangot kutamanggot Programs have not started yet, but you people are still in charge from now. In order to regain our energetic power, I want to all to have a big homework. So, are you all ready? Are you all ready? So, Bar Muhammad, Bulanda Salawat. I would like to invite Nubas Nabatu from 9th class. Please come on the stage to deliver your talking. Please give her a warm welcome. Who is omnipotent and omnipresent. A very warm good note to all the wonderful people present today. It's pleasure to start the topic on this auspicious occasion by heartily welcoming everybody. I heartily welcome our honorable chief guest, our principal, dear teachers, non-teaching staff, parents, and my fellow friends. Today we all have gathered here for the annual day celebration. On this great and auspicious occasion, Ayasra Matul is here to deliver a topic about parent-child relationship. A parent-child relationship is the most important one. To maintain any social relationship, both parties must have clear-cut rights as well as obligations. The relationship, the rights of parents are the obligations of the children. The rights of the children are obligation of the parents. It is clear that after Allah, parents are the one who gives us food, protection, innumerable favor. They provide protection, food and clothing to the newly born. Our mother sacrificed her comforts to sleep, to provide comfort to her children. The father works hard to provide for their physical, educational, psychological needs. It is the matter of common courtesy that if a person does you some favor, you feel obliged to him. Verbally, you say thank you to him. You try to repay and compensate him for his gift and favors. You feel a sense of gratitude towards him. So it is with Allah and with parents, Allah's favors can't be counted and can't repay, except by thanking him and obeying his orders. After Allah, our parents deserve our thanks and obedience for the favor they have done us. That's why Quran lays the stress on feeling grateful to parents and doing good to them. And your Lord has ordained that you shall worship none save him and shall do your parents a good turn. What does a good turn mean? It includes obeying him, speaking softly, avoiding harsh words or harsh tune, giving them company when they are lonely, caring for their physical and psychological needs, and praying to Allah that He may bless and have a mercy on them. A famous hadith says, paradise lies beneath the feet of our mother. This means doing good to our mother led us a paradise. Parents have a right to be respected and obeyed by children. Our parents are well-wishers of our children. They issue orders and instructions that are in the best interest of our children.
parents. Children should remember that annoying one parent can lead to God's wrath. Quran asks children to be soft-spoken towards parents and show respect and kind in their behavior towards parents. Unfortunately, as it is the Western societies have forgotten these lessons, young children are viewed towards these parents. Parents grow old, they drive them out from their homes and put them in senior citizen homes. Grown-up children can't spare time to attend to the needs of old parents. The busy Western life has led to the breakup of the family unit, so much upheld in the Islam. As Muslims, we expect our children to adhere to Islam values and show respect, obedience, kindness, leniency and care towards parents, especially in their old age. Children must not forget the favor and sacrifice of their parents. These rights and obligations are found in Islam only. Such values are to be found in all true religions. The Quran mentions a lot of positive examples of parent-child relationship, such as the one between Hazrat Yahya parents and in Surah Maryam. Allah praises Hazrat Yahya wa barram bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya. It means that he was devout and kind to parents and he was not overbearing or rebellious. And in the same surah, Hazrat Isa is quoted saying to his people, "Zalika Isa ibn Maryam qawla al-haqq alladhi fihi yamtarun." It means Hazrat Isa, he has made me kind to my mother and not overbearing or miserable. And last but not the least, I would like to end this speech with some quotes. घर की चार दीवारी में पूरी जहां होता है दोस्तों, घर की चार दीवारी में पूरी जहां होता है दोस्तों, माँ जमीन और बाप आसमान होता है दोस्तों, माँ जमीन और बाप आसमान होता है दोस्तों। नींद अपनी बुलाकर सुलाया हमको, नींद अपनी बुलाकर सुलाया हमको, आंसू अपनी गिराकर हंसाया हमको। दर्द कभी न देना उस खुद की तस्वीर को, दर्द कभी न देना उस खुद की तस्वीर को, जमाना माँ बाप कहता है जिनको। Thank you. It was really nice. Keep it up. May God bless you. Now, please give a round of applause for girls of class 4 and class 3 to present their dance. cooperate with us because it's our first annual program and I think such interventions make progress. But I hope that you will all support us for organizing such programs in the next year. हमको
प्रिंसिपल, दीगर मेहमान वालिदैन और प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज इस अजीब दिन के मौके पर मैं आप लोगों की खिदमत में एक नज़्म पेश करने वाली हूँ। वो एक बच्चे के जज्बात है अपने वालिदैन के लिए। तो इस नज़्म को सुनाने से पहले एक इल्तिजा है आपसे कि जो बातें इस नज़्म में कही गई है उनको थोड़ा गौर से सुने। तो ये नज़्म कुछ इस तरह शुरू होता है। नन्ही सी आंखें और मुड़ी हुई उंगलियां थी, नन्ही सी आंखें और मुड़ी हुई उंगलियां थी। ये तब की बात है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी, मेरे साथ मनाता था। घर में खाने के वादे थे, पनडुब्बी में पैसा जो रहा था और उसके खुद के सपने अधूरे थे पर मेरे लिए बुन रहा था। वक्त हटा, साल बढ़ा, पर सब सब अनजान था, मैं फिर भी उनकी जान थी। बिस्तर को गीला करना हो या फिर रातों को रोना, एक माँ ही थी जिससे मैंने छीना उनका सोना था। सुबह फजर तक गोदों में खिलाता, जूनों में हिलाता, फिर दिन को कमाता, शाम को चला आता। कभी खुद से परेशान, कभी दुनिया को सताया था। एक बाप ही था जिसने मुझे रोते हुए हंसाया था। अल्फाजों से तो गूंगी थी मैं, अल्फाजों से तो गूंगी थी मैं, पर वो मेरे इशारे समझ रहे थे। मैं खुद आज इस बात से हैरान हूँ कि कल वो मुझे किस तरह पढ़ रहे थे। मैं खुद आज इस बात से हैरान हूँ कि कल वो मुझे किस तरह पढ़ रहे थे। अब्बा तो छोड़ो यार, अभी आप ही निकला ना था, अब्बा तो छोड़ो यार, अभी आप ही निकला ना था, पर वो मेरी हर फरमाइशों को पूरा कर रहा था। और मैं भी अब उसके लाड प्यार में ढलने लगा था। घर से वो निकलना चाहे, उसके कदमों पे नजर रखने लगा था। और मुद्दे तो हजार थे बाजार में उसके पास, मुद्दे तो हजार थे बाजार में उसके पास, पर कब ढल जाएगा सूरज उसको इसका इंतजार था। और मैं भी दरवाजे की चौखट को ताकता रहता था, जब होती थी दस्तक तो वो घर से झांकता रहता था। देख के उसकी शक्ल में दूर से चिल्लाता था, जो भी इशारे मुझे आते थे उससे उसे अपने करीब बुलाता था। वो भी छोड़ छाड़ के सब कुछ मुझे सीने से लगाता था, कभी हवा में उछालता था, कभी करता सिखाता था। मेरी एक मुस्कान के लिए कभी हाथी कभी घोड़ा बन जाता था। पर शायद वो बचपन अब सो चुका था और मैं जवानी के दहलीज में कदम रखने लगा था। उसकी कुर्बानियों को उसका फर्ज समझने लगा था, चाहे वो कुछ बिना पंखे के सोना हो और मुझे हवा में सुलाना, या इसका वो कुछ पुराना कपड़ा पहनना हो और मुझे नया पहनाना, या तड़पते हुए बुखार में वो ठंडे माथे पे रखी हुई पट्टियां हो, या मेरी हर चीज के आगे झुक जाना। वो बचपन था, वो गुजर गया, वो बचपन था, वो गुजर गया, वो रिश्ता था, वो सुधर गया, और मैं उस कुर्बानी के बोझ को उठा न सका, इसलिए वो शहर कहीं दूर छोड़ आया, इसलिए मैं वो शहर कहीं दूर छोड़ आया। नया शहर था, नए शहर की हवा मुझ पे चढ़ने लगी थी। अपने बाप की हर एक नसीहत मुझे एक बचपना लगने लगी थी। काम जो मिल गया था, पैसे जो आने लगे थे, क्या जरूरत है बाप की, ये सोच मुझ पे पलने लगी थी। और उधर मेरा बाप बेचैन था मेरी याद में, और उधर मेरा बाप बेचैन था मेरी याद में कि कुछ रोज तो घर आजा बेटा, बस यही था उसके फरियाद में। कुछ रोज तो घर आजा बेटा, बस यही था उसके फरियाद में। तब उसमें एक जज्बात उमड़ने लगा था, जिस जज्बात से मैं हमेशा अनजान था कि बेलौस मोहब्बत की मूरत होता है बाप, बेलौस मोहब्बत की मूरत होता है बाप, जो लफ्जों से ना बुना जाए और कलमों से ना लिखा जाए, वो होता है बाप। जो रोते हुए को हंसा दे और खुद को मासूम करके तुम्हें खड़ा कर दे, वो होता है बाप। और ये मैसेज पूरी आवाम के लिए थी कि एक रोज तुम्हें एहसास जरूर होगा, एक रोज तुम्हें एहसास जरूर होगा कि मसरूफ तुम थे, उम्रदराज वो होगा, कि मसरूफ तुम थे, उम्रदराज वो होगा, जिसके उंगली का सहारा पकड़ के चला था, आज वही छड़ी का तलबगार होगा। और जिसके सदके पे जी रहे हो आज, जिसके सदके पे जी रहे हो आज, कल वो ना रहा तो क्या होगा। पर अब भी कुछ वक्त बचा है, कुछ खास तुम्हारे पास,
पर अब भी वक्त बचा ही कुछ खास तुम्हारे पास, जब तक बाप का साया तुम्हारे साथ होगा। और अगर जन्नत के तलबगार होगी तो सीने से लगा लेना, क्योंकि कल वही जन्नत का सरदार होगा, क्योंकि कल वही जन्नत का सरदार होगा। सबके लिए शिकवे मिटा के चिपक जाना उसको, सबके लिए शिकवे मिटा के चिपक जाना उसको, क्योंकि आज तो बाप तुम्हारे साथ है पर कल वो ना होगा, क्योंकि आज तो तुम्हारे साथ है पर वो कल ना होगा। So thanks for your kind attention. It was seriously very good that I can't express how I am feeling. Not only me, but all the audience were inspired by your Nazum. Thank you. Now I would like to invite Momo Kanizan group. Please come on the stage and present your Qawwali. Please welcome them with a big round of applause. बेसहारों के सहारे हमें रंजो गम के मारे, बेसहारों के सहारे हमें रंजो गम के मारे, दे दो हमको सहारा नबी नबी, दे दो हमको सहारा नबी नबी, दे दो हमको सहारा नबी नबी। फैला हर सो उजाला दूर हो गया अंधेरा, फैला हर सो उजाला दूर हो गया अंधेरा, जब दिल ने पुकारा नबी नबी, जब दिल ने पुकारा नबी नबी, जब दिल ने पुकारा नबी नबी। महबूब खुदा सुल्तान उमम, महबूब खुदा सुल्तान उमम, लिल्लाह करम हो हम पे करम, लिल्लाह करम हो हम पे करम। महबूब खुदा सुल्तान उमम, लिल्लाह करम हो हम पे करम। हे बहरे हरम में नाओ फंसी, कैसे निकले मुश्किल है घड़ी, कैसे निकले मुश्किल है घड़ी। आओ कश्ती संभालो हमें गम से छुड़ा लो, आओ कश्ती संभालो हमें गम से छुड़ा लो। आ जाओ खुदा नबी नबी, मेरे दिल ने पुकारा नबी नबी, मेरे दिल ने पुकारा नबी नबी। ए नूर खुदा की नूर किरण, ए नूर खुदा की नूर किरण, मुख्तार जहां सुल्तान ज़मन, मुख्तार जहां सुल्तान ज़मन। ए नूर खुदा की नूर किरण, मुख्तार जहां सुल्तान ज़मन। रहमत है तुम्हारी घर घर में, बरकत है तुम्हारी घर घर में, बरकत है तुम्हारी घर घर में। दोनों आलम तेरे मालिक कोई जोड़ी नहीं खाली, दोनों आलम तेरे मालिक कोई जोड़ी नहीं खाली। सदका है तुम्हारा नबी नबी, मेरे दिल ने पुकारा नबी नबी, मेरे दिल ने पुकारा नबी नबी। दुनिया भी तुम्हारे खातिर है, दुनिया भी तुम्हारे खातिर है, उक़बा भी तुम्हारे खातिर है, उक़बा भी तुम्हारे खातिर है। दुनिया भी तुम्हारे खातिर है, उक़बा भी तुम्हारे खातिर है। तुम दोनों जहां के मालिक हो, तुम कौन मका के मालिक हो, तुम कौन मका के मालिक हो। ये हवाएं फिजाएं बरसती घटाए, ये हवाएं फिजाएं बरसती घटाए, कहे सारा नजारा नबी नबी, मेरे दिल ने पुकारा नबी नबी, मेरे दिल ने पुकारा नबी नबी। सूरज में चांद सितारों में, सूरज में चांद सितारों में, कुरान के 300 पारों में, कुरान के 300 पारों में। सूरज में चांद सितारों में, कुरान के 300 पारों में। तनवीर तुम्हारे प्यार न, तहरीर तुम्हारे
मेरे दिल ने पुकारा नबी नबी। खिदमत में फरिश्ते आते हैं, खिदमत में फरिश्ते आते हैं, मौला की इनायत लाते हैं, मौला की इनायत लाते हैं। खिदमत में फरिश्ते आते हैं, मौला की इनायत लाते हैं। इन रात की ज़मीनें तहबा पर रहमत की घटा बरसाते हैं, रहमत की घटा बरसाते हैं। कोई फूल से जावाने अपने पलकों से बहारे, कोई फूल से जावाने अपने पलकों से बहारे, कोई रोज़ तुम्हारा नबी नबी। मेरे दिल ने पुकारा नबी नबी, 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 मेरे दिल ने पुकारा नबी नबी। Really insightful. It was very charming. Thanks for your cooperation, dear parents, dear elders, dear dignitaries, special guests. We know it's how much hard for you because all our programs are not much more perfect up to that extent. But please continue cooperating with us. You don't know how much your cooperation is encouraging us. By encouraging our programs, we are able to continue this program the next year too. So I would like to request now the Cutie Pie Ethnicity class, please come on the stage to present your rhyme. Please give them a warm welcome.
future. Attention parents, the program has just got started. It was just the beginning and now the program is here for. Attention dear parents, सदा प्रसन्न ना मेरे खुदा उनको मांगे जो मेरे साथ एक कतरा तुम ये दरिया उनको. Dear friends, without much wasting your time, now I would like to invite Ashokana Resby from 10th standard to please come on the stage and deliver her topic and ensure a relationship between the teachers and students. Please give her a big hand. In the name of Allah, the most precious, beneficent and merciful, honorable principal sir, respected teaching, non-teaching staff members, esteemed guests, parents and my dear fellow mates, Assalamu alaikum. Today is the day of parents and their relationship with the school compound and today I have to sign up. Would like to ask our students in their classroom. You are a positive relationship among the same students is a fundamental aspect of quality teaching and student learning. Positive teacher-student relationship promote a sense of school belonging and encouraging students to participate cooperatively. Where they are lived, teachers are never facing students with motivation in goal setting and students take turns with them for advice and guidance. As a parent, it is important to understand how to develop positive relationship among teacher and student, so you know how to look forward to a child's school. As a responsible parent, how to train and hire educated teacher who are aware of the impact they have not just on your son's test score, but also on his overall development and inside and outside the classroom. To develop academic and non-academic activities, it is very essential to cooperate among teachers and students. It is in relation with this
our special program, yes, the drama named is Kid, is going to be performed here. And I promise that this drama is going to love you at your best. For this, please welcome the skit group with a big round. ये ड्रामा 3 बेवकूफ शख्स के बारे में है। आप ये ड्रामा जरूर देखिए, बहुत ही दिलचस्प ड्रामा है। बुलबुल कास्तरो केव्हा खुशी तू तुला विनो या आचाशे बघतो दिनो तुला मिनी या पास साली जातो अच्छा आचाशे भी काका घेतली तुला मी काका आम्ही वारे यो ऑटोने चढ बचाओ पेले होता वो पेले नहीं या Boleh ya diyor seni ya. Ya kuciya diyor ya. Jasım ki o aspis dası. Namçe de ada? Namçe do? Ada asker şet pani. Asker ne çişe do ama paçına tok paçar gotmadan na da şet pa. Şet pani şet. O beni tapso. Yun na safit askato, yun कहते बेना लूट बन दिखचो। Ya घूस 30 रुपए घूसी. O çok güzel 30 रुपया. Kima sa? अच्छा ने 10 हमें 40 रुपए घूसी। Ondan sonra çıkan olsun. हाँ kima sa? अच्छा ने कितना हमें तैयार मिलता छाना 70 रुपए घूसी। Gato çıkan olsun. कितने कम दो 80 रुपए। अच्छा ने 100 रुपए घूसी। Ya do. Ya kiraya। बख्शीश की सफी निकलो 2000 रुपए यूं। Ya dulciya diye. Allah. Oyunca biro. Odina bunlar çoğundu. Odina bana var diyor, parçalar dikçadı o. Benden bunlar doğru. Bak doğru to. Oh Khoda. Mata şirin na kurtulacak olsun diye. Ya ben hatta ara kadar kurtulacak olsun ya. Ben hatta ara jagah ya. Ya ben khan dipir olsun. Ya dipir olmadı ya. Hatta nasıl dikarata है. Ola hamle diyor. O kaçıyor. O jaddi chalo. O ta murdulo. Mubarak. O makbeso. हेलो ये पुलिस स्टेशन है। हाँ पुलिस स्टेशन है। कहाँ पे? जगह तेरा बाप बताएगा। बच्चों में। अच्छा फिर हम आते हैं। सर फुल हुआ है। यहाँ पे नहीं लाचों में हमें जाना पड़ेगा। लाचों में हुआ है। चलो फिर ठीक है। एक कांस्टेबल इधर मेरे पीछे चलो। लेफ्ट कहाँ पे है? यहाँ पे ये है आई बहुत शरीफ आदमी लगते हैं। बहुत पता नहीं इसका खून की शादी तो इसकी शादी नहीं हुआ। बता तेरा खून की क्या? लाश नहीं बोला। लाश कैसे बोल सकते हैं? आपने सपना देखा होगा। मेरा सपना है। फिर बता इसका खून किसने किया? आप लोगों से पूछ रहा हूँ इसका खून किसने किया? वो Nama urdu mamino, mati urdu से नहीं ठीक हो। क्यों किया? कोई खून करता है जेल चलो। जेल पूछने दो। तुम लोग इतना मार खाएगा। जाओ ऑटो नाम पूछो। तुम कांस्टेबल इनका नाम लिखो। जाओ
बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बताओ तुम्हारा नाम क्या है? यापो। सर, इसका नाम यापो है। यापो है लिखो। बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बताओ तुम्हारा नाम क्या है? यापी। सर, इसका नाम यापी है। यापी है लिखो। बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बताओ तुम्हारा नाम क्या है? याता। सर, इसका नाम याता है। जाता है लिखो। अजीब अजीब नाम है, कहाँ के लोग हैं पता नहीं। तो मैं क्या करूं? Good night. Stand up. तो बच्चों मेंटल मैथ निकालो। निकाला। बच्चों 3 + 3 8 होता है। बोलो कैसे? गलती से। बच्चों 2 + 2 4 होते हैं। बोलो कैसे? नहीं सही से। बच्चों मेंटल में बहुत हो गया, अब मेंटल नॉलेज निकालो। तो बच्चों बताओ सबसे पहले आलू कहाँ पाया गया था? जमीन के नीचे। अच्छा बच्चों बताओ ताजमहल किसने बनाया? नहीं मिस्त्री ने बनाया। बच्चों बताओ दरियाए अमीर क्यों होते हैं? क्योंकि उसके पास 2 बैंग होते हैं। अच्छा बच्चों बताओ, चलो बच्चों अब मेंटल इंग्लिश निकालो। तो बच्चों आज हम अपोजिट वर्ड्स पढ़ेंगे। तो बच्चों बताओ टेलर का अपोजिट क्या होता है? मैं होता हूँ। तो बच्चों मैं चलता हूँ। Yorshik. A little knowledge is dangerous. Happy anniversary! The students of LKG and UKG class, please come on the stage to present your name. Please welcome them with a grand hand of applause. It's you! Now, let's move! We are healthy too! And shoulders, knees and toes, knees and toes. And shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. And shoulders, knees and toes, knees and toes.
बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। जब भी कश्ती मेरी से लाख में आ जाती है, ये दुआ करते हुए ख्वाब में आ जाती है। Thank you, dear. Now, this program is the last program of the students' special program today presented. Now, I would like to request the students of class 2nd and 1st to please come on the stage to present your food culture show. Please welcome them with a grand round of applause. Teacher, I am a peer. I am a city and happy. I like a temple dance. Hello everyone, good morning. I am an apple. Apple are written with a vessel in glass. An apple and a key of the way we must eat apple daily. Good morning. I am a watermelon. Meaning the restaurant. Outside I am very restaurant. Inside I am very tasty. Thank you. I study in class UKG. I am a dress are different color, green, purple and black. Thank you. Hello everyone. I am a Nasruddin. I am a doctor of today. Good morning. Good morning. I am pineapple. I am daisy and juicy fruit. I am very expensive. I look like red crystal from inside. Thank you. Chief Education Officer Kargil, Mr. Mohammad Musa is here, so we can understand how much busy you might be. And sir, thank you very much for cooperating with us. And now I would like to request you to come here to say a few words on the event and kindly give him a warm welcome. और यहाँ मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स, प्रिंसिपल साहब, पेरेंट्स और डियर स्टूडेंट्स, सबको मेरी तरफ से सलाम। मुझे थोड़ा आने में देरी हो गई। सबसे पहले मैं उसका मजा चाहता हूँ क्योंकि एजुकेशन की तरफ से हुक्म है संडे को खोलने के लिए, इस वजह से थोड़ा आने में देरी हो गई, मजा चाहता हूँ। इसके अलावा आप लोगों के यहाँ स्टूडेंट्स बहुत अच्छे थे, चाहे वो बच्चों ने जहाँ आते आते मुझे वहाँ मॉड्यूल दिखाए वो बहुत अच्छे थे, इनोवेटिव थे। बच्चों के अंदर से बहुत सलाहियत है, इसको बाहर की जरूरत है। इसमें टीचर्स और पेरेंट्स के
मदद की ज़रूरत है। तो मेरा यही गुजारिश है आप लोगों से, बच्चों के अंदर जो है जो सलाहियत है बाहर निकालने के लिए, इसको इनोवेटिव तरीके से निकालने की ज़रूरत है। इसको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, बच्चों को गाइड करने की ज़रूरत है। इसमें वो अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, पेरेंट्स की ज़रूरत है, टीचर की गाइड की ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ बच्चों ने जो एक्टिविटीज देखा है बहुत ही अच्छे थे। सवाल स्कूल के बारे में मैंने पहले बहुत सुन चुके थे, लेकिन आज तक ऐसे प्रोग्राम हम यहाँ पहुँचे नहीं। यहाँ के परफॉर्मेंस जब से स्टेबलाइज हो गए तब से आज तक बहुत अच्छे रहे हैं। रिजल्ट में या एक्टिविटीज में हो, हर चीज़ में मैं इस सिलसिले में मैनेजमेंट कमेटी को, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, स्टाफ को, प्रिंसिपल को, सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। तो इसके अलावा यहाँ पर कुछ दिन पहले हमारे यहाँ इंस्पायर मनक की तरफ से एक टीम आए हुए थे, जिसका सरबराही यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की एक प्रोफेसर नदीम साहब है, वो यहाँ भी आए थे। इस सिलसिले में जिन बच्चों में सलाहियत होगा उनको यहाँ इंस्पायर, उनका जो इनोवेटिव जो काम करते हैं उनके बारे में यहाँ पर वर्कशॉप रखे थे। इस सिलसिले में हमने यहाँ पर हर स्कूलों को, प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, हायर सेकेंडरी लेवल के बच्चों यहाँ पर टीचर्स को यहाँ पर दावत दिया जानने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से इंफॉर्मेशन गेट हो रहे थे या कुछ और तरीके से हुए। तो साझा सचिव हमारे घर में है, लेकर सारे अब उन रब्ता करके अपने स्कूल को रजिस्ट्रेशन किया जाए और बच्चों जो अपने साथ उसको इनोवेटिव तरीके से जो यहाँ सलाहियत है उनको डिस्ट्रिक्ट सतह पर इनका मुकाबला हो जाते हैं। इसमें जो चुन कर जाते हैं वो स्टेट लेवल पर जाते हैं, वहाँ से कुछ आगे नेशनल पर भी जाते हैं। हमारे यहाँ के पिछले 2-4 साल पहले जो हमारे खुद के एक बच्चे को हमने नेशनल लेवल पर जा चुके हैं। तो यहाँ बच्चों में बहुत सारे ऐसे यानी बच्चा खुद भी मनक और इंस्पायर अपना रजिस्ट्रेशन करवा के बच्चों की सलाह को आप लोग नेशनल स्तर तक पहुँचा के आप बच्चों कोशिश करेंगे। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त देना चाहता हूँ। तो अभी वहाँ पर एक नाम है हमारे मास्टर साहब होकर वहाँ उन्होंने बुलाया था। तो गुलाब साहब और उनके जो नेशनल कमेटी के मेंबर थे उनको मैंने कर हाँ कहा था, की वजह से मुझे यहाँ आना जरूरी था और वहाँ दर्शन करना मुझे बहुत जरूरी है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट का फंक्शन था। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों को यहाँ ज़्यादा देर मैं आप लोगों का दे नहीं सका। इन बच्चों को अपनी तरफ से 2000 रुपये बतौरे इनको आप खुद भी कर सकते हैं मैं कहता हूँ। तो शुक्रिया आपका नहीं चाहता हूँ। आप लोग यही से मेहनत से, लगन से, टीचर से गुजारिश करता हूँ इस पता से बार बार यहाँ पहुँचते नहीं है। आप लोगों की जिम्मेदारी है बच्चों की देखभाल करने की, तालीमी हिसाब से इनको कम करना आपकी जिम्मेदारी है। अब सिलसिले में साहब और स्टाफ को या स्टूडेंट को हमारे सर्विस दे दूँगा, क्योंकि जिस तरीके से आज के कोई जाए है स्टूडेंट को गाइड किया है, प्रोग्राम भी बहुत अच्छा रहा है। जबकि मुआबादी से हकदार हैं मेरे तरफ से जो आज इस मौके पर मुबारकबाद साथ में आज पहली बार और पहली बार मिला अपने बच्चे के स्कूल में रहने का हमें का मौका मिला, इसलिए आपको बारे नहीं रहा मुझे कोई मौका नहीं मिला, जैसे कि खबर सलामी तो मुझे नहीं दी। लेकिन जब आज मैंने देखा कि बच्चों का प्रोग्राम है इन्वाइट किया गया, बाकी देखते आ रहा हूँ तो में जो यहाँ पर पेंटिंग वगैरह का जो गिफ्ट किया गया है या उनके मॉडल बनाए रहे हैं। प्रोग्राम तो अच्छा बना है, लेकिन इसमें बच्चों से जब बात करते हैं तो थोड़ी सी कमियाँ पाई कि मनुष्य के बारे में वो जो एक्सप्लेन करना चाहते हैं या पेंटिंग के बारे में, तो एक्सपेक्टेशन है कि वो बोलना तो चाहते हैं, बोल भी रहे हैं कुछ, लेकिन बच्चों में एक्सपेक्टेशन है कि वो आने वाले को किस तरह अपनी तरफ असर करें, उससे तस्वीर की या मॉडल की भाषा से उन्हें हेजिटेशन है। इस हेजिटेशन को निकालने के लिए बच्चों से हेजिटेशन को दूर करने के लिए प्रिंसिपल साहब उनके स्टाफ है यही गुजारिश करूँगा कि इनके क्लासेस में रिलैक्स कराएं या फिर प्रोग्राम रखें या टैलेंट शो रखें,
बच्चों की इस आपस में तकलीफ है, उनकी हेजिटेशन दूर हो जाएगी। अपनी बात को एक दूसरे में शेयर करने से भी इनमें जो झिझक है बच्चों में बोलने के लिए वो दूर हो जाएगी। इसी एक प्रैक्टिस की जरूरत है। तो पेरेंट्स को भी ऐसे कामों के लिए जो उनका सिराज है उसके काम के लिए उसके घर मदद की जरूरत हम मुझसे तो बेरोज मदद देना चाहिए और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मैं आज स्कूल के प्रिंसिपल साहब और उसके पिता को सबसे पहले मैं यही अप्रिशिएशन देता हूँ कि उन्होंने हर प्रोग्राम में कहीं ना कहीं कोई छोटा स्टूडेंट्स रखी है और उन्हें भेजिए आइंदा भी इसी तरह करें। इसके बाद प्रिंसिपल साहब से मैं खासकर गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्रोग्राम आप अच्छे बनाता है, प्रोग्राम भी अच्छे हैं, बच्चों का टैलेंट भी अच्छा है और इसमें आप मिलकर कोशिश भी बहुत करते हैं। इन्हीं एक्टिविटीज का एक जरिया बनाए, एक मैगजीन बनाए, बच्चों के लिए भी काम आ जाएगा और विविधता के लिए आप स्कूल में कहीं रखेंगे तो वो भी काम आ जाएगा कि वो आने वाला देखेगा कि आपकी एक्टिविटीज कैसी रही। यही आप अप्लाई करेंगे, आपकी एबिलिटी को, आपकी कैपेबिलिटीज को अप्लाई करेंगी, इसी से स्कूल आगे बढ़ सकता है। स्कूल की बच्ची के लिए अगर हम फोटोग्राफ को या किसी तस्वीर को किसी मॉडल को कहीं रख लेते हैं तो फिर तो जगह में रखने से या टेबल में सजाने से बात तो नहीं है, लेकिन उसके साथ उसके मकसद को भी रखा जाए कि इस मॉडल को हमने क्यों बनाया है और इस तस्वीर को अगर दीवार पे लगाया है तो हमने क्यों लाया है, इसकी थोड़ी सी तस्वीर हो या एक नजीर में लाया छोटा सा, वो बच्चों के लिए काम आ जाएगा। अगर उसको कंप्यूटर करने में किसी की मदद की जरूरत पड़ती है इंशाल्लाह हम उसके लिए भी तैयार हैं। बाकी आप लोगों के प्रोग्राम के लिए हम आपको मुबारकबादी देते हैं जिसके लिए आप साथी रखते हैं। आज हमने देखा, मैं तो पहली बार आया हूँ, पहली बार आपका मैंने देखा तो मेरे लिए तो सेटिस्फेक्शन का है। तो मैंने स्टूडेंट से भी बात की, उनसे भी बात की। स्टूडेंट बात तो कर रहे थे, थोड़ी सी हेजिटेशन है उसमें, थोड़ी है, उसको निकालने की जरूरत है। हम सब उसके मिलकर काम करना होगा, पेरेंट्स एज वेल एज टीचर। तो स्टूडेंट को काम करने की जरूरत है, आपस में ये। तो इसके साथ मैं आपके हावी लेना चाहता हूँ आज की मुलाकात से स्टाफ को मुबारकबादी हो कि इसमें कर लिया है प्रोग्राम और आगे बन जाएगा। तो इस मदद की बात है, 119 की बात है तो उसमें कोशिश कर रहे हैं तो इसको सजाई रही सबसे बहुत खुश है। थैंक you sir, we appreciate it. Because to the responsibility of everybody we celebrate our Child Day, but it's of course I wanted that we have started here. I hope you will all cooperate with us in order sharing and celebrating this lecture. Thank you sir. Next on my request, Mr. Masya Asghar, please come on the stage and provide on this topic. Please come on the stage sir. Please welcome them with appreciation. Ahun Hassan Sahib, Haji Arad Sahib, University School Officer Muhammad Hussain Sahib, Sajid Sahib, actually that, सभी पेरेंट्स बहुत ही खुशी का मुकाम है क्योंकि आज तक 65 पेरेंट्स हमें चिट्ठियाँ आते थे, हम कुछ मसूब रहते हैं क्योंकि वो छुट्टी के दौरान हम भी आते हैं। तो पहली बार मैं यहाँ पेरेंट्स में शिरकत होने के लिए यहाँ आया, तब से मुझे बड़ी खुशी महसूस हुआ कि वाकई स्टूडेंट्स और टीचर्स के कोऑपरेशन आज मुझे देखने को मिला, बहुत ही अच्छी प्रोग्राम। अभी तक जो छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों ने किया, अभी इसके बाद प्रोग्राम शुरू होने अभी बाकी है। तो वाकई जो छोटे छोटे LKG क्लास के बच्चे फूल जैसे नन्हे मुन्ने का यहाँ आके प्रोग्राम अपने टैलेंट बताते हैं। हम कहीं मैं ये कहना चाहता हूँ कि 200-250 बच्चे जेब तालीम हैं, तो वाकई यहाँ 200 या 250 पेरेंट्स को यहाँ का छुट्टी के दिन इन नौनिहाल बच्चों की हौसला अफजाई के लिए जरूर आना चाहिए था क्योंकि ये टाइम बार बार नहीं मिलते हैं। और आते समय जो बच्चों ने प्रोग्राम मॉडल्स रखे हैं, जैसे लिफ्ट इरिगेशन बहुत मेहनत करके बनाया है और बच्चों से जब हम पूछा तो अच्छी तरह से करते थे, वाकई में बड़ी अच्छी मुझे महसूस हुआ। वैसे तो मैं गवर्नमेंट के टीचर हूँ, लेकिन जो आज टैलेंट मुझे देखने को मिला वो बहुत पसंद आया। सामने छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों ने यहाँ NSTR हेल्दी के लिए कुछ प्रोग्राम रखे थे, बहुत अच्छी लगा। मैं उस प्रोग्राम के लिए आहुल साहब के पास 500 रुपये का इनाम अभी देने जा रहा हूँ। जो छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों ने यहाँ प्रोग्राम किया और प्रिंसिपल साहब और स्टाफ मेंबरान का भी मैं ज़्यादा मशहूर हैं कि आप इस तरह भी आगे बच्चों के साथ क्लासरूम्स में
हमारे अपनी लैंग्वेज शुरू न करें, बल्कि उर्दू में उनको बताएं और बेसिक क्लासों से लेकर अगर 8 क्लास तक आप हिंदी में ज़्यादा तवज्जो दें। और पेरेंट्स जो हजरात यहाँ आए हैं, हम उनकी तरफ से इंशाअल्लाह कोई शिकवा जिला हमारी तरफ से नहीं है, क्योंकि मैं खुद बहसत के पेरेंट पहली बार यहाँ आया हूँ। साथ ही जो स्कूल के ड्यूज होते हैं, हमारे फीसेस होते हैं, अभी तक शिकायत नहीं है, वो आप टाइमली पहुँचा दें ताकि जो यहाँ से टीचर्स उनके अप्रिशिएट हो जाए, उनकी अपनी आमदनी है कि हमारे बच्चों के ऊपर ज़्यादा फोकस देंगे। और आखिर में मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं अपनी तरफ से 5 रुपए के नाम जनाब राहुल साहब के पास, जो नौनिहाल बच्चों ने हेल्दी इंस्टाइट के बारे में हमें बताया, उसके लिए मैं 5 रुपए के नाम देने जा रहा हूँ। It's just a few words for you all people, but it's too much. It's like an encouragement for us that all other things would be able to understand. It encourages us to organize new meetings, new set of programs further in the future. Thank you, sir. Thank you so much. And the next thing that I think I must once again repeat is that the cooperation between the teachers and the parents. If you think that you have admitted your student in a private institution and you wouldn't carry him further, but I think according to me that's wrong. Because firstly, my friends, my co-host Mukhtar Ahmed has said that the cooperation between the teachers and the students must be like the cooperation between the two wheels of a two-wheeled vehicle. So if one wheel fails to cooperate with the other wheel, then there's nobody left other than. So I request you all to do your best to cooperate with the teachers and parents. Please parents to cooperate with us. Thank you for your vote of encouragement. Now, without much wasting your time, I want to request our ex-principal, Mr. Rahul Hassan sir, please come on the stage to say a few words on the event. Please give him a moment. इज़्ज़त महात जनाब प्रिंसिपल साहब और उनके रफ़ाक़ाए-कार हज़रात, यहाँ पर आए हुए हमारे मेहमान जनाब हबीबुल्लाह साहब, हाजी आज़ाद साहब, मोहम्मद हुसैन रहनुमा साहब, सारा साहब और बहुत से पेरेंट्स हजरात यहाँ पर आए हुए हैं। आज सवाब स्कूल बरू एनुअल डे कम पेरेंट्स डे मना रहे हैं। इस सिलसिले में बच्चों और स्टाफ मेंबर्स, टीचरों ने जो मिलकर मेहनत किए हैं, वाकई वो काबिल-ए-दाद और काबिल-ए-तहसीन है। आज जो प्रोग्राम यहाँ पर जितने भी डिस्प्ले हुए हैं, आपके मॉडल्स का, बाकी जो प्रोजेक्ट्स वगैरह जो आपने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रखे थे, और जो प्रोग्राम, जो खूबसूरत प्रोग्राम यहाँ पर छोटे छोटे नौनहाल बच्चे आपको दिखा रहे थे, इससे पेरेंट्स को एक मैसेज जाता है, एक पैगाम जाता है। क्योंकि जब तक स्कूल के माहौल के अंदर पेरेंट्स दाखिल न हो और स्कूल के इंटीरियर में जाकर बच्चों से कन्वर्सेशन किए बगैर पेरेंट्स इस स्कूल का स्टैंडर्ड और परफॉर्मेंस के बारे में नहीं जानते हैं। उसके लिए इस स्कूल में आना, स्कूल के टीचरों से गुफ्तगू करना, स्कूल के बच्चों से इंट्रोडक्शन कराना और स्कूल के माहौल को समझने की जरूरत पड़ता है। आज एक मौका मिला है पेरेंट्स को
कि आपके बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करतब दिखा सकते हैं, तालीम के मैदान में कितना आगे हैं। सिर्फ यहाँ पर इंटरटेनमेंट के लिए ये जो प्रोग्राम हैं वो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बल्कि इससे एक पैगाम आपको जाता है और उस पैगाम को लेकर इस स्कूल के स्टैंडर्ड को आप जान सकते हैं। बहरहाल प्रोग्राम बहुत अच्छे थे, काफी मेहनत किया हुआ था। जो यहाँ के तालीमी मेयार के सिलसिले में एक बात मैं जरूर कहूँगा कि जो मुरवजा तालीम है उसमें हम माशाअल्लाह बहुत आगे जा रहे हैं और इससे भी आगे हम जाने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन एक तालीम के सिलसिले में हम उसको भूल रहे हैं, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, वो है बच्चों की अखलाकी तालीम। क्योंकि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मुझे दुनिया में भेजने का मकसद, मुझे मबूस करने का मकसद लोगों की अखलाक को संवारना है, अखलाक को बनाना है। ये अखलाक हमारे इस्लाम का एक जुज़ है। जब तक हम में अखलाक न हो, जब तक हम में अखलाकी इक़दार न हो, तब तक हमें मुसलमान कहने का बल्कि इंसान कहने का हक नहीं, क्योंकि ये अखलाक ही है जिससे हैवान और इंसान में कोई फर्क है। वालिदैन की इज्जत करना, वालिदैन की इताअत करना, बुजुर्गों को सलाम करना, बुजुर्गों की इज्जत करना, एक दूसरे से मिलजुल कर बैठना। बच्चे एक दूसरे से लड़ते हैं, उनको सिखाना चाहिए कि लड़ना हमारा काम नहीं, हमें प्यार और मोहब्बत से एक दूसरे को समझाना है। इस तालीम की मैं देख रहा हूँ हर जगह कमी आ रही है, तो मेरा गुजारिश यही है कि मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ, फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ, करिकुलर एक्टिविटीज के साथ साथ आपको अखलाक का भी तालीम देना चाहिए। आपको हमेशा बच्चों को ये ज़हन नशीन कराना चाहिए कि अखलाक हमने किस हद तक होनी चाहिए। लिहाजा आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था और इसके लिए मैं प्रिंसिपल साहब और स्टाफ मेंबरान को मुबारकबाद दे दूंगा। बच्चे भी यहाँ पर खासकर मैं इस यहाँ पर जो प्रोग्राम अनाउंसर के लिए कनीज बेटी यहाँ बैठी थी, मैं उसकी परफॉर्मेंस को बहुत सराहता हूँ। काफ़ी अच्छी तरह उसने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरह हम सबको सिखाना चाहिए। अभी हबीबुल्लाह साहब ने कहा हेजिटेशन है आपकी, मैं तो कहता हूँ करगिल वालों में एक्सप्रेशन की मात्रा ही नहीं है, एक्सप्रेशन कर ही नहीं सकते। ये कमी हमने बहुत पहले से रहा है, क्यों हमें समझ में नहीं आ रहा। इसको निकालने की जरूरत है, हेजिटेशन को निकालने की जरूरत है, एक्सप्रेशन को बढ़ाने की जरूरत है। हम एक्सप्रेशन नहीं कर सकते हैं किसी चीज को, इस चीज को निकालने की जरूरत है। तो मैं ज्यादा देर आपके बीच में हाजिर नहीं रहूंगा। यहाँ पर मुझे इनवाइट करके कुछ बोलने का मौका दिया, आप लोगों का मैं मशकूर हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। Was very stretching for us. So I think all are getting tired now. So all our birds
नूर हक शम्ए इलाही को बुझा सकता है कौन, नूर हक शम्ए इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। काबिल एहतराम अलहाज अखौन मोहम्मद हसन साहब, अलहाज मोहम्मद हुसैन आजाद, हबीबुल्लाह साहब, अलहाज गुलाम रसूल साहब, आशफ साहब, कल्चर ऑफिसर सागर साहब, और बाकी मौजूद मेहमाना अजीज तालबा तालबात, अस्सलाम वालेकुम। मुझे काफ़ी सुकून हासिल हुआ जब सुबह यहाँ 100 पब्लिक सुबह के आते में घुसते ही बच्चों का टैलेंट नजर आया। बच्चों ने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए थे वो काबिल तहसीन था, अप्रिशिएबल था। इससे बच्चों का टैलेंट, बच्चे कितने अवेयर हैं अपने माहौल के बारे में, जिंदगी के बारे में, जिंदगी की अहमियत के बारे में, मुस्तकबिल में माहौल को बचाने के बारे में, मुस्तकबिल में इंसान की जिंदगी के सुकून को सेफ करने में, बचाने में बच्चे कितने अवेयर हैं, बच्चे कितने बेदार हैं, बच्चे कितने होशियार हैं। और जितने भी पेंटिंग्स बच्चों ने बनाए थे सब एजुकेशन से रिलेटेड थे, तालीम से रिलेटेड था। माशाल्लाह, अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि हमें इससे अंदाजा होता है कि बच्चे अपने आप को कितना निखार चुका है, तालीम के लिहाज से कितना संवार चुका है। अगर यही प्लेटफॉर्म इन बच्चों को आगे भी बरकरार रहे तो इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में ये बच्चे न सिर्फ स्कूल का नाम रोशन करेंगे, अपने वालिदैन का नाम रोशन करेंगे, अपने गांव का ही नहीं, अपने जिला का ही नहीं, बल्कि स्टेट का नाम भी रोशन कर सकता है। मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड ऑफिसर हूँ, तो मुझे स्पोर्ट्स में यहाँ के बच्चों ने जो अचीवमेंट्स हासिल किया है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ। पिछले कई सालों से हम जोन लेवल पर टूर्नामेंट चलाते हैं और इसमें से जितने भी इंटर जोनल के लिए प्लेयर सेलेक्ट होते हैं, टीम सेलेक्ट होते हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादातर शॉर्ट स्कूल के बच्चे ही सेलेक्ट हो जाते हैं। इस बार स्कूल टूर्नामेंट में हैंडबॉल में और खो-खो दोनों में जो है, शायद दोनों में है, ये 100 पब्लिक स्कूल बोर्ड जो है चैंपियन रहा है। यहाँ तक ही नहीं बल्कि बॉक्सिंग में जो हमने स्टेट लेवल का चैंपियनशिप चलाए हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल का चैंपियन चलाए हैं, इसमें भी कराटे और बॉक्सिंग में, और जो आर्चरी हमने ले भेजे थे बच्चों को इंटर डिस्ट्रिक्ट में हिस्सा लेने के लिए, तो मैं पहले लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस पर थोड़ा रोशनी डालना चाहता हूँ। पिछले साल न सिर्फ इंटर स्कूल टूर्नामेंट में और न सिर्फ इंटर जोनल टूर्नामेंट में, बल्कि स्टेट लेवल इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स में बच्चे नेशनल के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं।
यानी जम्मू कश्मीर टीम के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं और जम्मू कश्मीर की तरफ से ये बच्चे जो है आगे जाकर मुल्क के दूसरे स्टेट की टीमों के साथ मुकाबला करते हैं। तो इन मुकाबलों में पिछले साल 100 पब्लिक स्कूल से 6 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। इनके नाम इस तरह से हैं। अंडर 17 टेबल टेनिस में उम्मुल फनीम डॉटर ऑफ हाजी मोहम्मद इब्राहिम, टेबल टेनिस में न सिर्फ इंटर-जोनल के लिए ही नहीं बल्कि इंटर डिविजनल के लिए ही नहीं बल्कि नेशनल के लिए सेलेक्ट हो गए थे और स्टेट से बाहर जाकर इन्होंने अपने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करके आए थे। आर्चरी में विलायत अली डॉटर ऑफ सज्जाद, विलायत अली सन ऑफ हाजी मोहम्मद इब्राहिम, इन्होंने आर्चरी में जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किए थे स्टेट से बाहर जाकर। मुबीना सराज अंडर 17 में मुबीना सराज डॉटर ऑफ सराजुद्दीन और बॉक्सिंग में फातिमा निसा, बॉक्सिंग अंडर 14 में मोहम्मद हसन सन ऑफ असगर अली की तिशरी और एक अंडर 17 का खिलाड़ी है मोहम्मद नवाज। ये सब बॉक्सिंग में जम्मू कश्मीर टीम के लिए सेलेक्ट हुए थे। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि इनमें से 1-2 बच्चे जो है नेशनल पार्टिसिपेशन के लिए नहीं गए थे। इनको कुछ अपनी मजबूरियां रही होंगी। लेकिन बच्चे, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आम लोगों के टैलेंट को निखारने के लिए, टैलेंट को बाहर लाने के लिए, इसको प्लेटफॉर्म देने के लिए हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक अलग डिपार्टमेंट खोल के रखा है। तो इसमें आप लोगों का कंपटीशन कर करके आप लोगों में जो सबसे ज्यादा चीज है उसको निकाला जाता है। तो इसके बाद ये टैलेंटेड प्लेयर्स, टैलेंटेड टीम जो है स्टेट के दूसरे जिलों के साथ मैच कराने के लिए हम यहाँ से पूरा ट्रांसपोर्टेशन और इनका बॉडी लॉजिंग पूरा खर्चा लेकर यहाँ से कश्मीर या जम्मू या लेह भेज देते हैं। तो वहां से और भी छानबीन करके उससे भी ज्यादा हुनरमंद और टैलेंट बच्चों को सेलेक्ट करके जम्मू कश्मीर टीम के लिए सेलेक्ट करने के बाद जब नेशनल का कंपटीशन का टाइम आ जाता है तो हम यहाँ से जम्मू तक पूरा बच्चों का ट्रांसपोर्टेशन, बॉडी लॉजिंग वगैरह यहाँ से जम्मू तक हम भेजते हैं। जम्मू से आपका डायरेक्टर ट्यूशन स्पोर्ट जम्मू कश्मीर स्टेट से बाहर आप लोगों का पूरा बॉडी लॉजिंग और ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ घेर करके आप लोगों को और खुला प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं ताकि उससे भी बड़े मैदान में जाकर आप अपने टैलेंट को जाहिर करें, बड़े मैदान में आप तजुर्बा हासिल करें, बड़े मैदान में मुल्क के कोने कोने से आए हुए खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस देखें, उनसे बातचीत करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मोमेंट्स करने का आपको मौका देते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर मिले, ताकि आप लोग अंदर से एक मजबूत इंसान बने और जिंदगी के हर सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए आपने सहायक पैदा हो जाता है। इससे ज्यादा एजुकेशन को कोई मकसद नहीं हो सकता है। लिहाजा ऐसे मौजूद कुछ बताते हुए रजा क्या है। तो मैं भी इस मौके पर टीचर्स की मेहनत और बच्चों की मेहनत और शौक ज़ौक़ के नतीजे में जो कुछ हमें यहाँ देखने को मिला, इस पर एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की कमेटी है, हाजी गुलजार हुसैन, मोहम्मद इब्राहिम वगैरह, उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। और बच्चों की रिफ्रेशमेंट के लिए 1000 रुपया मैं हाजी गुलजार के पास दे देता हूँ। And we don't only hope, we have believed
that Samadhis would be the best in the field of sport. And not only Samadhis would there be an increasement in their programs, but we also are hoping that there will be an enhancement from the sports officer in these programs. So sir, without much wasting your time, I would like to request Mr. Ijaz sir to please come on the stage to share with your experiences on today's program. Please. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri amri wa yassir li qawli uqdatan min lisani wa yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Respected guest of honor, Janab Hussain Rahima sahab, more senior members of SPSS Baru, Janab Akhund Hasan sahab, Haji Azad sahab, principal sir, staff members, non-teaching staff members, and special dear parents. A very good afternoon to all of you. So before wasting your precious time, I would like just to share my lecture, trying to deliver in Urdu so that you can get easy to understand. सबसे पहले मैं माफी तलब चाहता हूँ प्रिंसिपल सर से और मैनेजमेंट कमेटी से कि मेरा कोई मौजूद नहीं था यहाँ पे आके आप लोगों के दरमियान कुछ बातें बोले, लेकिन जिनने मजबूर कर दिया कि यहाँ पे आके एक दो लफ्ज आप लोगों तक भी पहुँचाए। एज ए सीनियर स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, क्योंकि इस स्कूल से मेरा पूरा राबिता रहा है, इस स्कूल से मैंने अपना बेसिक एजुकेशन हासिल की है, तो इस चीज को देख के मेरा मन किया कि यहाँ पे आके आप पेरेंट्स के लिए स्पेशली कुछ बातें यहाँ से आप तक पहुँचाइए। मैं अपनी जगह पे जरूर समझा। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा आप पेरेंट्स से कि इस स्कूल में जितने भी स्टाफ रहा है, अभी है और आगे आएंगे इंशाल्लाह, कोई ऐसा स्टाफ ऐसा नहीं है कि जिसने इस स्कूल में अपना परफॉर्मेंस पूरा नहीं किया। हमारे स्कूल टाइम्स में भी जितने भी टीचर स्टाफ मेंबर्स यहाँ पे थे, अपना पूरा जी जान लगा के हमें आगे बढ़ाया। और आज मैं भी खुद एक टीचर हूँ, एज ए टीचर होने के नाते मेरा वही फर्ज बनता है कि आप पेरेंट्स तक कुछ अच्छी बातें पहुँचाए, ताकि आपके बच्चों में एक इंस्पायरेशन मिले, इनको हौसला मिले आगे बढ़ने के लिए। तो बच्चों में कोई कमी नहीं होता, हर कोई बच्चा अपनी जगह पर जितना टैलेंट होना चाहिए, नेचर में जो गिफ्ट किया इनमें वो होता ही है, बस इनको एक राह दिखाने के लिए सही गाइडेंस चाहिए हो आप पेरेंट्स, स्पेशली आप पेरेंट्स से। टीचर तो सपोर्ट करेंगी, इनका तो फर्ज बनता है कि जब किसी स्कूल में आए तो बच्चे का मुस्तकबिल बनाने के लिए आप पेरेंट्स भी इनको स्कूल छोड़ते हैं। तो सबसे जरूरी चीज है आप पेरेंट्स का तवज्जो बच्चों के लिए क्या रहता है। और मैं दिल से कहता हूँ, बहुत खुशी मिलता है, चाहे हमारी इस स्कूल से हो या मुताहरी स्कूल से, अगर बच्चे यहाँ से डिस्टिंक्शन में आते तो हम जैसे स्टाफ को बहुत खुशी मिलता है कि हमारे स्कूल के बच्चे भी आगे आए। और इतने बच्चे डिस्टिंक्शन में आते हुए देख के हमें भी बहुत खुशी मिलती है। यार चलो हमारे स्कूल से भी इतने बच्चे आ रहे आगे, ये बच्चे भी आगे कौम की खिदमत के लिए कुछ करेंगे, हमें उम्मीद रहता है। मैं थोड़ा सा अपना किस्सा आपको सुनाऊंगा। जब मैं छोटा था, जब मैं 10th क्लास में यहाँ पे पढ़ता था, टीचर्स हमें उस समय तो थोड़ा बहुत डांट पड़ती थी, कभी कान पकड़ते थे, कभी डंडा मारते थे, लेकिन खुदा की कसम आज मुझे खुद रियलाइज होता है जब मैं उन टीचरों से मिलता हूँ, दिल में खुशी मिलता है कि जाके सीधा उस टीचर का हाथ। आज के ऑनरेबल गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब मोहम्मद हुसैन रहमा साहब, यूथ सर्विसेज ऑफिसर, हमारे मैनेजिंग कमेटी के सीनियर मेंबर्स जनाब आखुंद मोहम्मद हसन साहब, हाजी साहब, इसके अलावा जनाब हमारे एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन के इंस्पेक्टर के हेड जनाब सागर साहब, और यहाँ पर तशरीफ लाए तमाम वालिदैन और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप लोगों को आज के अनुवल दिन के मौके पर पेरेंट्स,
तमाम बच्चे और स्कूल के प्रिंसिपल और तमाम टीचर्स को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे सवाब पब्लिक स्कूल कारगिल, जिसका किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में बाकी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जाने जाते हैं। जिसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करूंगा हमारे जो प्रीवियस हमारे मेंबर्स को, जिनकी मेहनत और लगन से जिन्होंने जिस हालत में इस स्कूल को बनाया है, जिस तरीके से इस हद तक पहुंचाया है, इसके लिए मुबारकबादी का हकदार ये हमारे सीनियर मेंबर्स और जो बुजुर्गवार शख्सियत हैं, जिनमें से कुछ इस दुनियाए फानी से रहलत कर चुके हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। जहां तक इन्होंने इस स्कूल को हमारे और हमारे जवानों के हवाले किया है, तो ये हमारे लिए एक अमानत है। तो इंशाअल्लाह हमारी पूरी टीम, जिसमें हमारे स्कूल के प्रिंसिपल साहब और उनके सारे और फतहकार, तमाम वालिदैन और तमाम स्टूडेंट्स मिलकर इसको इससे भी आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। Please come on the stage to first sharing the words of thanks. Please come on. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। Respected Youth Sports Officer मोहम्मद हुसैन रहनुमा साहब, एक्स प्रिंसिपल साहब पब्लिक स्कूल बरू जनाब अहम साहब, एक्स चेयरमैन SPS बरू हाजी आज़ाद साहब, साजिद साहब, बाकी डिग्नेटरीज, पेरेंट्स, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सभी पेरेंट्स का, यहाँ पर आए हुए मेहमानों का, स्टाफ की तरफ से, मेरे अपनी तरफ से तहे दिल आप सबों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस दिन को मनाने में, इस दिन को यहाँ तक पहुँचाने में आप सबका साथ रहा। और स्टाफ मेंबर्स, बच्चे, आप लोगों के कोऑपरेशन के बगैर बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। आप सबों के मेहनत, लगन की वजह से आज पहली बार, क्योंकि एज प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक स्कूल बरू मेरा तीसरा साल चल रहा है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है लाइफ में कि किसी स्कूल का एज HOD, हेड ऑफ द स्कूल, ये पहली बार मेरा एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस मुझे इससे पहले नहीं कि कैसे इस तरह के फंक्शंस मनाए जाते हैं। तो इस फंक्शन के बाद में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि क्या कमियां रहा इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है आगे। इंशाल्लाह आइंदा वक्तों में इस तरह के जब प्रोग्राम्स होंगे और इससे भी अच्छी तरह से हम मनाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हुआ है, और दूसरा यहाँ 2 बजे के बाद थोड़ा हवाएं चलने लगती है, तो इसमें बहुत सारी परेशानियाँ आना शुरू हो जाता है। इससे पहले मैं कुछ बातों को हाईलाइट आप लोगों के सामने करना जरूरी समझता हूँ। मुझे उम्मीद था कि पेरेंट्स इससे भी बहुत सारे आएंगे। संडे के दिन मैंने इसलिए रखा था ताकि बहुत सारे पेरेंट्स जहाँ पर जब आएंगे, मुझे रात भर यही परेशानी मुझे खाया जा रहा था कि
कहीं बैठने की जगह का प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आप लोगों ने मेरा साथ दिया और ये परेशानी आने से आप लोगों ने मुझे दूर रखा। मुझे उम्मीद था कम से कम 200 पेरेंट्स यहाँ पर आएंगे, लेकिन जो भी पेरेंट्स यहाँ पर आए अपने बच्चों का आज के दिन को समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आने से आपके समझ में आएगा, क्योंकि हमारे घरों में हमारे अपने एक बच्चे या 2 बच्चे होते हैं, उनको संभालने में आपको कितनी परेशानियां होती है। तो हमारे साथ यहाँ इतने सारे बच्चे आप लोगों ने देखा होगा कितनी परेशानियां रहते हैं कि इनको बिठाने में, इनको एक जगह रखने में। इससे आप लोगों को अंदाजा हो जाता है कि किस तरह से मैनेज करना होता है। इंशाल्लाह यहाँ पर हमारे आखों साहब ने एक बात कहा तो मैं उसको दोबारा रिपीट करना नहीं चाहता। बच्चों में सबसे ज्यादा कमी अखलाकी तालीम की कमी है। हम हमेशा उसके पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन उतना रिजल्ट हमें नहीं मिलता उस लाइन में। अखलाकी तालीम घर से शुरू होती है। घर के अंदर जिस तरह की माहौल होगा वही आके स्कूल में भी उस बच्चे का माहौल वही रहता है। आप लोग अपने घर में बच्चों के लिए एक अच्छा अखलाकी माहौल बनाएं। एक बच्चे को अखलाक की लाइन में ज्यादा मजबूत होना जरूरी है, बगैर कुछ भी नहीं हो सकता था। आप लोगों के कोऑपरेशन से ही, क्योंकि 3-4 दिनों से स्कूल पर ही रुके हुए हैं, दिन रात करके इस प्रोग्राम को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और इस हद तक पहुंचाया है। इसके अलावा हमारे स्कूल में 3 टीचर्स ऐसे हैं जो मोस्ट सीनियर है, जो तकरीबन 15 सालों से इस स्कूल के लिए कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, इस स्कूल के बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ अभी एजाज यहाँ पर आकर आपके सामने मुखातिब होकर चले गए। उन बच्चों को उन्होंने KG में पढ़ाया है, आज वो टीचर हैं। उन बच्चों को हाथ पकड़ के उनको पढ़ाया है, वो आज इनके सामने स्पीच कर रहे हैं। और हमारे स्कूल में ही, दूसरे किसी स्कूल में नहीं होगा, हमारे स्कूल में यहीं से पढ़ के जाने वाले बच्चे वापस आकर हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो भी फिजिक्स आके भी यहाँ पढ़ाते हैं। दूसरा एक और बात मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे प्रिंसिपल डाइट से, जिसमें हमारे सादक सर का भी बहुत बड़ा हाथ है। वो हमारे स्कूल के लिए ट्रेनिंग रिसोर्स प्रोवाइड करके हमारे टीचरों को इस साल 2-3 बार इन्होंने हमें ट्रेनिंग दिया है। फंडामेंटल बुनियादी बच्चों को बुनियादी जो ट्रेनिंग होती है टीचर ट्रेनिंग, वो हमें प्रोवाइड किया है। इसके लिए मैं तहे दिल इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन 3 टीचर के बारे में जो आपने बात कर रहा था, आप लोगों की उनके सर्विस को जो उन्होंने मेहनत किया है वो आज उनके सामने हो। तो मैं 4 टीचर यहाँ पर जो भी है उनको बुलाता हूँ, इनाम इन बच्चों को देकर इनको मिलकर बुलाना चाहूँगा। आप डाइस पर आकर अपना ये एप्रिसिएशन अवार्ड आप अखुन सर के हाथों से लें। नाज़मीन बानो तैयार रहें। खो-खो में के लिए ये सेलेक्ट हुई थी और ये हमारे जोन लेवल के टीम का कैप्टनसी ये कटन बची है। तालियों से इनका स्वागत करें। शुक्रिया हम सब इसे नेशनल खेलने गया हुआ है। उनके कोई पेरेंट्स अगर हो, नहीं तो कोई क्लास टीचर अगर है तो वो सामने आकर ये। इसके बाद आर्चरी में दफा से अनुक आर्चरी इंटरनेशनल क्लास 8 अगर वो यहाँ पर प्रेजेंट है तो आज सामने आकर आप ये अवार्ड लें। अगर नहीं है तो बाशिश सर वो आज यहाँ पर नहीं है, तो मैं आशा सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आगे आकर उनका ये इनाम उन बिहाफ ऑफ मैडम हकीमा आप ले सकते हैं, प्लीज। प्लीज आप आगे आए। सवाल आपके लिए इन्होंने रखा है वो आप प्लीज उनके हाथ हमारे हुसैन साहब के हाथों से लें। शुक्रिया हुसैन साहब। हंसते हैं दिल से। दूसरा यहाँ पर हमारे नासिर साहब जो यहाँ पर आज के प्रोग्राम को कवर करने के लिए यहाँ पर आए, आपका भी बहुत मशहूर हो। और ऑल इंडिया डायरेक्टर, प्रोग्राम डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो करगिल
उन्होंने भी यहाँ पे हमारे प्रोग्राम को कवरेज के लिए उनके अमले यहाँ पर भेजे, उनके लिए भी बहुत मशहूर हूँ। तो इससे पहले हम पूरे प्रोग्राम को क्लोज करें, हम नेशनल एंथम से पूरे प्रोग्राम को क्लोज करना चाहते हैं।